हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेटेस्ट ट्रेवल क्लास 4 DAV चैप्टर 11। तो आइए इसमें हम देखते हैं। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर 11 नेम्ड लेटेस्ट ट्रेवल। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, types of transportation in rural, urban, coastal and hilly areas, animals in transport, etc. This chapter starts about a girl, or we may say about the story of a girl who is working in Gurgaon and is getting married in Meerut. How are the members of the family of Sonali relative and the friends coming in the मैरिज सेरेमनी इज़ द मैटर ऑफ स्टडी। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसको आप रीडिंग दे दीजिए। तो रीडिंग अगर आप इसको इस हिसाब से दे रहे हैं तो उसके बाद इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, फिर इसको समझने का कोशिश कीजिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो ये स्टार्ट होता है कि सोनाली वर्क्स इन गुरुग्राम। She is getting married in Meerut. Her sister Neha and her husband are coming from Dubai by an aeroplane. Her uncle's family is coming from Ahmedabad by train. Her grandparents are coming from Delhi by car. Her friends have hired a taxi to take them from Delhi to Meerut to attend the wedding. Her relatives who live close by would be coming by auto rickshaw, cycle rickshaw, bus, scooter, motorcycle, car or taxi. People use different means of transport for traveling. The selection depends upon the distance, time and money they want to spend on travel. If you want to reach a far off place very quickly, air travel will be the choice, but train travel gives a better chance to view the scenery. As the train passes through different places, more river railway are ideal for transporting heavy goods and are economical. The means of road transport like cycle, rickshaw, car, bus, etc. are useful for traveling over short distances. They also provide door-to-door services. If you stand on the main road in a small town in the morning, you would see hundreds of workers, laborers riding on bicycle to go to their workplaces. A similar scene can be seen in the evening when they are coming back from their work. Some means of transport used in rural areas differ from those used in urban areas. Let us know more about it. Rural transportation. Farming is the main occupation in the rural areas. Vegetables and fruits are perishable items, things that rot quickly. They are transported on the daily basis to nearby cities and towns in bullock carts, tractor trolleys or trucks. Similarly, there are harvesting of wheat and rice. Trucks laden with gunny bags make their way on the rural roads to the nearby towns or cities. The goods carried by different means of transport give us a clear indication about the crops grown in that areas. The bullock carts, tractor, trolleys or trucks loaded with agricultural goods go from village to cities. When they go back to the villages from cities, they are laden with gas cylinders, light machinery, textiles, scooters, etc. All of them are made in factories in town and cities. तो इस हिसाब से इसको पूरा रीडिंग दे दीजिए। अब हम इसमें जो चीज़ है, जो तथ्य है, जो बताया गया है कि कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, कौन कौन से मीन्स हैं, तो बड़ी अच्छी शुरुआत है। सबसे पहले सोनाली से, जो गुरुग्राम में काम करती है। सोनाली वर्क्स इन गुरुग्राम। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन मेरठ। उसकी शादी मेरठ में हो रही है। हर सिस्टर नेहा एंड हर हस्बैंड आर कमिंग फ्रॉम दुबई बाय एन एरोप्लेन। तो सबसे पहले आप जानिए कि सोनाली कहाँ काम करती है। वेयर डज सोनाली वर्क? तो सोनाली वर्क्स इन गुरुग्राम। सोनाली काम करती है गुरुग्राम में। और उसकी शादी कहाँ होने वाली है? तो उसकी शादी होने वाली है मेरठ में।
और उसके जो बहन है उसका क्या नाम है, तो उसके बहन का नाम नेहा है। वो कहाँ से आ रही है, तो दुबई से आ रही है। कैसे आ रही है, तो एरोप्लेन से आ रही है। अब दुबई से जो कोई आ रही है तो वो मतलब ऑटो रिक्शा से या ट्रेन से तो आएगी नहीं, बस से तो आएगी नहीं। तो वहाँ जो दूर दराज क्षेत्र में हैं, समुद्र पार में हैं, एब्रॉड में हैं, तो वो लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं उनका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एरोप्लेन है। तो यही बतलाया गया है कि जैसे कि नेहा और उसके जो हस्बैंड हैं वो दुबई में रहते हैं, तो आएंगे एरोप्लेन से आएंगे। तो जब सोनाली की शादी हो रही है तो उसमें जो मेहमान लोग आ रहे हैं, कुछ रिलेटिव आ रहे हैं, कुछ परिवार के सदस्य आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं। दे आर यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके अंकल की बात लीजिए, हर अंकल्स फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद बाई ट्रेन। उसके जो मतलब चाचा का परिवार है वो अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो अहमदाबाद से ट्रेन की सुविधा है तो ट्रेन से आ रहे हैं। वो एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि वो एरोप्लेन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वो ट्रेन ही क्यों यूज कर रहे हैं, इस पर भी आप ध्यान दें। उसके बाद चर्चा है उसके ग्रैंड पेरेंट्स का। तो हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय कार। उसके जो मतलब दादाजी हैं, दादी जी हैं, ये लोग हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये लोग आ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली जो गुरुग्राम के नज़दीकी है, तो कार से आ रहे हैं। तो इसमें ये भी बतलाया गया है कि जो शॉर्ट दूरी है तो उसको आप कार से अटेंड कर सकते हैं, कार से कवर कर सकते हैं। कार से जो यहाँ पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका कार हो सकता है। हर फ्रेंड्स हैव हायर्ड ए टैक्सी टू टेक देम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। और उसके जो मित्र लोग हैं किसके, सोनाली के, उन्होंने एक टैक्सी को किराया पर लिया है और टैक्सी से आ रहे हैं दिल्ली से मेरठ। क्यों आ रहे हैं, टू अटेंड द वेडिंग, शादी समारोह को अटेंड करने के लिए। हर रिलेटिव्स हु लिव क्लोज बाय would be coming by auto rickshaw, साइकिल रिक्शा, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी। उसके ऐसे संबंधी, ऐसे कुटुंब जो नज़दीक में रहते हैं वो ऑटो रिक्शा का से आ रहे हैं, या साइकिल रिक्शा से आ रहे हैं, या बस से आ रहे हैं, या स्कूटर से आ रहे हैं, या मोटरसाइकिल, कार या टैक्सी से आ रहे हैं। तो इसमें बतलाने की कोशिश की गई है जो शॉर्ट दूरी में अगर हमको कहीं पर जाना है तो हम ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी इस सब का सेवा ले सकते हैं। उसके बाद चर्चा है कि पीपल यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग। जो व्यक्ति जो है कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, तो ये डिपेंड करता है उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो चुनाव है। द सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, टाइम एंड द मनी दे वांट टू स्पेंड ऑन ट्रेवल। ये जो उनका सिलेक्शन होता है वो निर्भर करता है कि उनको कितनी दूरी तय करनी है, कितना समय लगाना है, कितना वो पैसा उसमें स्पेंड करना चाहते हैं, इस पर उनका चुनाव निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मतलब जो आवागमन का साधन है, परिवहन का साधन है, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के आवागमन के साधन का उपयोग करते हैं, चुनाव करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और उनका कौन सा साधन का वो चुनाव करेंगे, तो वो उनका चुनाव है, उनका जो सिलेक्शन है वो दूरी, समय और पैसा जो उसमें वो निवेश करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं ट्रेवल पर, उस पर निर्भर करता है। इफ़ यू वांट टू रीच ए फार ऑफ प्लेस वेरी क्विकली, एयर ट्रेवल विल बी द चॉइस, बट ट्रेन ट्रेवल गिव्स ए बेटर चांस टू व्यू द सीनरी एज द ट्रेन passes through different places. Moreover, railways are ideal for transporting heavy goods and are economical. अगर हम दूर जाना चाह रहे हैं और बहुत कम समय में आपको पहुंचना है तो एयर ट्रेवल बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। उसका वो जो चॉइस है एयर ट्रेवल का वो बहुत अच्छा हो सकता है। बट ट्रेन ट्रेवल्स गिव्स ए बेटर चांस, लेकिन जो रेल का जो यात्रा है, ट्रेन का जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छा मौका देता है हमको
कौन चीज़ के लिए मौका देता है, तो सीनियरी जो होता है उसको देखने के लिए। एज द ट्रेन पासेज थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि ट्रेन जो पास करता है अलग अलग जगहों से होते हुए ट्रेन जो गुजरता है, तो ये इससे हम सीन सबको देख सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य। पहाड़ी इलाका से जब ट्रेन गुजरेगा तो हम पहाड़ी सीन सबको देख सकते हैं। मोर रिवर रेलवेज आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड आर इकोनॉमिकल। इसके अलावा जो रेलवे का जो यात्रा होता है वो एक आदर्श ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, भारी भारी सामान को ढोने के लिए, और इकोनॉमिकल भी है, मतलब आर्थिक रूप से भी वो सराहनीय है। वो कम खर्च वाला संसाधन हो सकता है, साधन हो सकता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल, रिक्शा, कार, बस एट्सेट्रा आर यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, जैसे कि साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, कार, बस इत्यादि, ये बहुत ही यूजफुल हैं, फ़ायदेमंद हैं, लाभप्रद हैं। कौन चीज़ के लिए? तो छोटी दूरी में जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, छोटी दूरी के लिए यात्रा कर रहे होते हैं, उसके लिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड टू डोर सर्विसेज। अब हमको दरवाजे तक पहुंचना है तो हम टैक्सी का सहायता ले सकते हैं, रिक्शा से हम जा सकते हैं। और मतलब जैसे ट्रेन है तो ट्रेन से तो हम डोर टू डोर सेवा नहीं न ले सकते हैं, बस से हम डोर टू डोर सेवा नहीं ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी, रिक्शा, कार, बस इस सब से हम घर के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। If you stand on the main road in a small town in the morning, you would see hundreds of workers, laborers riding on bicycle to go to their workplaces. A similar scene can be seen in the evening when they are coming back from their work. अगर आप मेन सड़क पर खड़े हो जाएं छोटे शहरों में, तो सुबह के समय आप देखेंगे कि सैकड़ों वर्कर और लेबर लोग साइकिल पर चढ़ करके जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, जहां उनका कार्यस्थली है, जहां पर वो काम कर रहे होते हैं। और ऐसा ही सीन शाम के समय में भी आप देख सकते हैं जब वो अपने वर्क प्लेस से अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एरियाज डिफर फ्रॉम दोज यूज्ड इन अर्बन एरियाज। अब ग्रामीण इलाका में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो शहरी इलाका में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अलग है। अब इसके बारे में बताया गया है, तो वही कहा जा रहा है कि लेट अस नो मोर अबाउट इट। अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे, या हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानें। रूरल ट्रांसपोर्टेशन, रूरल का अर्थ होता है देहाती। देहाती इलाका में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, इसके बारे में इस पर प्रकाश डाला गया है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन मोस्ट रूरल एरियाज़। ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाका है वहाँ खेती मेन व्यवसाय है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पेरिसेबल आइटम्स। ये जो सब्जी और फल है वो जल्दी सड़ जाने वाला आइटम है। तो पेरिसेबल आइटम्स किसे कहते हैं? पेरिसेबल आइटम वैसे आइटम को कहते हैं जो कि जल्दी से सड़ जाने वाला होता है। तो उसको जल्दी से अगर नहीं पहुंचाया गया अपने स्थल पर जहां लोग उसको यूज करेंगे तो सड़ने का डर रहता है। तो उसमें उसके बारे में कहा गया है कि ग्रामीण इलाका में जहां वेजिटेबल और फ्रूट सब की खेती होती है, तो वहां से दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू नियर बाई सिटीज़ एंड टाउन इन बुलॉक कार्ट्स, tractor trolleys and trucks. Similarly, after the harvesting of wheat and rice, trucks laden with gunny bags make their way on the rural roads to the nearby towns or cities. तो इसके बाद बताया गया है कि कैसे डोर टू डोर उसको पहुंचाया जाता है। सारे चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है कि अगर उनको जल्दी से नहीं पहुंचाया जाए सिटी में या टाउन में तो सड़ जाएंगे। तो उनको कैसे पहुंचाया जाता है? नज़दीकी गांव से जो नज़दीक में शहर हैं तो वहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रेली, ट्रक्स इस सब के द्वारा उनको पहुंचाया जाता है। इसी तरह से गांव में जब कटाई होती है गेहूं और चावल की, तो ट्रक से लदे हुए जो
ट्रक जो बोरा से लदे हुए होते हैं, अनाज के बोरा से जो लदे होते हैं, उनको भी मेक दियर वे ऑन द रूरल रोड्स टू द नियर बाई टाउन और सिटीज़। तो उनको भी सड़क मार्ग से ट्रक के माध्यम से नज़दीकी शहर और सिटीज़ में, छोटे बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। द गुड्स कैरिड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिव अस ए क्लियर इंडिकेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरियाज़। अब ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अलग अलग तरह का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा सामान लदा हुआ है, उससे ये जानकारी मिल सकती है कि उस एरिया में कौन सा क्रॉप्स पैदा होता है, कौन सा फसल पैदा होता है। द बुलॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रेलीज और ट्रक्स लोडेड with agricultural goods go from village to cities. When they go back to the village from cities, they are laden with gas cylinder, light machinery, textiles, scooter, etc. All of them are made in factories in town and cities. तो ये जो बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रेली है या ट्रक्स है, उससे लदा हुआ जो ये ट्रक, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर ट्रेलीज है, तो उस पर जो कृषि उत्पाद है, कृषि संबंधी जो फसल है, उसको उस पर लाद करके गांव से शहर भेजा जाता है। और जब शहर से आता है ट्रक, तो वो खाली नहीं आता है, वो उसमें क्या करता है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, मशीनरी, कपड़ा, स्कूटर, ये सब को लोड करके वो शहर से गांव में आता है। और कई बार जो है वो खाली नहीं लौटता है, वहीं जो किसान सब बात कर लिया, जो उसको पहुंचाना है, तो ट्रक से लोड करके फिर उसको शहर भेज दिया जाता है। कई बार उसको अकेले भी आना पड़ता है, तो अगर मतलब उसको आते जाते दोनों समय मिल जाए किराया, तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो जो शहर से गांव से, इसमें ये बतलाने की कोशिश की गई है कि गांव से शहर जो हम भेजते हैं, कैसे सामान सबको भेजते हैं, कृषि उत्पाद को कैसे भेजते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स को कैसे भेजते हैं। तो उसमें हम लेते हैं मदद, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रेली, ट्रक्स, ये सब का हम यूज करते हैं। और जब शहर से गांव सामान सब लाया जाता है, तो उसमें कौन सा सामान होता है, तो गैस सिलेंडर, लाइट मशीनरी, टेक्सटाइल, स्कूटर, ये सब सामान को शहर से हम गांव में लाते हैं ट्रक के मदद से, जो वहाँ पर फैक्ट्री में, शहर में, बड़े छोटे शहरों में फैक्ट्री में तैयार होते हैं। In coastal areas, the fishermen use boats to transport fish and other seafood items. Sometimes steamers and ferries equipped with cold storage are used to transport fish. Similarly, on the hilly areas, mules are used for transporting goods along with pythas. तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो तटवर्ती इलाका होता है, तटवर्ती क्षेत्र होता है, समुद्र के किनारे, तो कोस्टल एरिया ऐसा जगह होता है जहाँ पर लैंड और सी दोनों मिलते हैं। तो उस एरिया में जो फिशरमैन लोग नाव का प्रयोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और नाव के मदद से मछली और अन्य जो समुद्री उत्पाद होते हैं, खास करके फूड आइटम्स, सी फूड आइटम्स होता है, समुद्र से भी बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको बाहर भेजने के लिए या उसको फिर अपने तटवर्ती कोस्टल एरिया में लाने के लिए और नाव का प्रयोग करते हैं। और नाव के अलावा स्टीमर और फेरीज इक्विप्ड, कोल्ड स्टोरेज लगा हुआ जो फेरीज होता है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं या छोटा सा जहाज़ होता है, तो उसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये हो गया कोस्टल एरिया के लिए। अब पहाड़ी एरिया की बात कीजिए, तो सिमिलरली ऑन द हिली एरियाज म्यूल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स अलोंग विथ पाइथस। तो पहाड़ी इलाका में म्यूल्स का यूज होता है और साथ ही कूली सब का भी उपयोग होता है। कूली लोग मनुष्य ही होते हैं जो कि सामान को लाद करके पहुंचाते हैं अपने गंतव्य स्थान में। इसके बाद अब इसमें चर्चा किया गया है एनिमल्स का, कि एनिमल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में है उनका कैसे यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हम एनिमल का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे हम अभी चर्चा किए हैं बुलोक कार्ट का, तो उसका अर्थ होता है बैलगाड़ी। उसी हिसाब से हॉर्स कार्ट भी होता है, उसी हिसाब से कैमल कार्ट भी होता है।
तो इसमें कैमल कार्ट में कैमल का यूज होता है, मतलब ऊँट गाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, बैलगाड़ी हो गया, तो बैलगाड़ी में बैल का उपयोग होता है, हॉर्स कार्ट में घोड़ा का उपयोग होता है और कैमल कार्ट में ऊँट का उपयोग होता है। तो इसके बारे में बतलाया गया है कि एनिमल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन। ए बुलोक कार्ट और ए हॉर्स कार्ट कैन go up to the farm. This helps the farmer to load the vegetables, fruits easily for quick transportation. Bullock has been a farmer's friend since olden times. The farmer has used it to pull water from the well, flow the fields and transport the goods to the market. Most farmers take good care of their animals. The camel carts are a common sight on the roads of Bikaner and other places of Rajasthan. A cart is loaded with sacks of red chilies or other items. The camel is beautifully decked up with tassels and bells. The owner addresses the camel as his son and pets him affectionately. तो अब यहाँ इसमें बतलाया गया है कि एनिमल का कैसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, कैसे बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर हम जो कृषि संबंधी उत्पाद है, अनाज है, उसको बोरा में लाद करके हम कैसे उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, कैसे ये जो किसान का मदद करता है, सब्जी फल इसको जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा जो बैल को किसान का मित्र कहा गया है पुराने समय से, और इसका किसान यूज करते थे पानी खींचने में भी, सिंचाई में भी यूज करते थे। किसान बैल के मदद से हल जोता जाता था खेत में। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा सा साधन है। मार्केट में सामान को पहुंचाने के लिए बुलोक कार्ट और हॉर्स कार्ट का हम मदद लेते हैं। तो बहुत सारे जो किसान हैं जो जानवर से फ़ायदा उठाते हैं, जानवर का यूज करते हैं, तो अपने जानवर की बहुत बढ़िया से देखभाल करते हैं। और राजस्थान इलाका में बीकानेर सब जो इलाका है वहाँ कैमल कार्ट का यूज होता है, तो उसको भी कैमल को बहुत बढ़िया से सजाते हैं किसान लोग, और मतलब उसको घंटी उंटी और कपड़ा उपड़ा सबसे उसको सजाते हैं। और उसके बाद जो है जो किसान लोग उसको अपना बेटा के रूप में एड्रेस करते हैं। उसके बाद आते हैं अब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन होता है शहरी इलाका में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन रूरल एरियाज। ह्यूज ट्रक्स एंड ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट ए वेराइटी ऑफ हैवी मशीन्स फ्रॉम द seaports and factories to different parts of our country. A trailer carrying the latest cars to a town city reflects the progress of car manufacturing industries and prosperity of the people who have created a large demand for cars. अब इसमें शहरी इलाका में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में बतलाया गया है। यह थोड़ा सा अलग होता है ग्रामीण इलाके के ट्रांसपोर्टेशन से। बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर जो बहुत भारी मशीन सब को ले जाते हैं समुद्री इलाका से, बंदरगाह से, सी पोर्ट से, और मतलब अलग अलग फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, देश के विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं। अब इसमें चित्र में दिखाया गया है कि कैसे कार को लोड करके ट्रक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहा है, कैसे जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहां से सामान को हैवी ट्रक पर लोड करके पहुंचाया जा रहा है, इसको दिखाया गया है। द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट ईजी टू गुड to be transported from one areas to another. Earlier the cities faced acute shortage of milk in the summers, but now the situation has changed because special trucks collect milk even from remote rural areas and transport it to cities in all seasons. दूध भी एक जो ऐसा उत्पाद है जो जल्दी ख़राब हो जाने वाला है, तो उसके लिए एक स्पेशल गाड़ी बनाया जाता है, ट्रक बनाया जाता है, जिसमें कि स्पेशल ट्रक में दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है और सुदूर देहाती इलाकों से उसको इकट्ठा करके शहर के तरफ प्रत्येक सीजन में उसको पहुंचाया जाता है। उसके बाद चर्चा किया गया है शिप का, जहाज़ सबका कैसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। शिप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरी हैवी आइटम्स लाइक ऑयल, ड्रिलिंग इक्विपमेंट, मशीनरी और
printing, textile and other manufacturing industries from one country to another. Transportation by ships is cheaper than other modes of transport. जहाज़ से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्ता भी पड़ता है और उसमें बहुत सारे जो पदार्थ हैं, हैवी आइटम्स है, ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मशीन है, प्रिंटिंग है, टेक्सटाइल है, वो सब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है। तो उसको वहाँ पर जो पहुँचाने की बात होती है, बाहर से जो हम सामान मंगाते हैं विदेश से, ऐसा ट्रक है जिस पर 4 जो ट्रेन का सामान है, मालगाड़ी है, उतना सामान लोड हो जाएगा। एक ऐसा ट्रक होता है जिसको तोड़ने में 3 साल 4 साल लग जाता है। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है कि द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया हैव मेनी एडवांटेजेस बट देयर यूसेज हैज़ इंक्रीज्ड द ट्रैफिक ऑन द रोड एट ए वेरी फास्ट रेट। तो विभिन्न तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम अपनाते हैं। विभिन्न तरह का जो मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का, वो देहाती और शहरी इलाके में यूज होता है, भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में यूज होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं बट दियर यूसेस हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन रोड एट ए वेरी फास्ट रेट। लेकिन इससे जो है सड़क पर जाम की समस्या भी हो जाती है। ये जो है ट्रैफिक को बढ़ा दिया है। द ट्रैफिक जाम, डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सीडेंट्स एंड पोल्यूशन आर द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी हो गया है बहुत ज़्यादा वाहन होने का। ये निगेटिव इफेक्ट क्या है? तो ट्रैफिक जाम है, सामान के डिलीवरी में जो देरी होती है वो इसका नेगेटिव इफेक्ट है। उसके अलावा सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये सब जो है निगेटिव इफेक्ट है। और मतलब ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो ये सब का इसी के चलते कुछ निगेटिव इफेक्ट्स पैदा हुए हैं। In order to improve the present situation, efforts are being made to improve the quality of roads, build flyovers, bridges and city bypass to remove unnecessary delays. Vehicles are using CNG, compressed natural gases and better quality of petrol and diesel to reduce vehicular pollution. तो ये जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको समझने के बाद अब इसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति में प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जाए ट्रांसपोर्टेशन को। तो उसके लिए अच्छे क्वालिटी की सड़क बनाई जा रही है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, पुल और बाईपास को बनाया जा रहा है ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। उसके अलावा CNG का यूज हो रहा है जिससे कि पोल्यूशन कम होता है और मतलब जो बेटर अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे कि डू यू नो में कि कैसे कुछ चीज़ की चर्चा की गई है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको देखिए। इफ़ यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ बुलो कार्ट्स लेडन विथ शुगर कैन लाइंड अलोंग ए रोड यू विल नो दैट देयर इज़ ए शुगर मिल अराउंड। मतलब अगर जहाँ पर आप देखें कि गाड़ी पर गन्ना लदा हुआ है और सड़क पर लाइन लगा हुआ है ऐसे वाहन का जिस पर गन्ना लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि अगल बगल में चीनी मिल है। उसके बाद चर्चा किया गया है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन का साधन शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच में एक पुल का काम करता है। उसके बाद है कोस्टल एरिया। ए कोस्टल एरिया इज़ द प्लेस वेयर द लैंड मीट्स द सी। वो तटवर्ती इलाका वो एरिया होता है। कोस्टल एरिया का अर्थ होता है तटवर्ती इलाका। तो वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर लैंड मीट करता है सी से, मतलब ज़मीन जो है समुद्र से मिलता है। उसके बाद है ऑल एनिमल मस्ट बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस वेदर ओल्ड काउस, स्ट्रे डॉग्स, कैमल्स और एलिफेंट। मतलब चाहे वो गली का कुत्ता हो या गाय हो या कैमल हो या एलिफेंट हो, सबके साथ हमको दया बरतनी चाहिए। उसके बाद है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस, सो फार इट वाज ओनली यूज्ड फॉर वाटर।
तो ये उसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पर चर्चा किया गया है। डू यू नो में इसमें बताया गया है कि बहुत ही लोकप्रिय ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है ये, लेकिन इसमें ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक बार जहाँ पर कच्चा तेल है वो पाइपलाइन में एक बार पंप कर दिया वो पहुँच गया, लेकिन पाइपलाइन को बनाने में बहुत अधिक खर्चा है, लेकिन ये पॉपुलर हो रहा है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस। तो ये गैस मतलब ऑयल और गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। सो फार इट वाज ओनली यूज्ड फॉर वाटर। तो इस हिसाब से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। और लास्ट में देखिए कि इसमें कहा गया है कि स्टेज ऑफ मार्केटिंग एजेंसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो कहाँ से, फ्रॉम द फार्म टू द विलेज मार्केट, जो फार्मर है वो पहुँचाता है कैसे, तो हेड लोड एनिमल बैग बुलॉक कार्ट ट्रैक्टर ट्रॉलीज के मदद से वो पहुंचाता है। दूसरा है फ्रॉम विलेज मार्केट टू होलसेल मार्केट एंड मिलर। इसमें जो एजेंसी है वो ट्रेडर और मिलर्स है, कैसे पहुंचाता है, तो बाय ट्रक एंड रेलवेज। तीसरा है फ्रॉम मिलर एंड होलसेल मार्केट टू रिटेलर। इसमें मिलर एजेंसी का नाम हो गया मिलर और रिटेलर, कैसे पहुंचाता है, तो बाय ट्रक रेलवे मिनी ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉलीज। उसके बाद है फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर, तो इसके लिए एजेंसी हो गया कंज्यूमर, कैसे पहुंचाता है, तो बाय हेड लोड एनिमल बैग बुलॉक कार्ट हैंड कार्ट रिक्शा कार बस एट्सेट्रा। इस हिसाब से इसको आप समझिए, पूरा वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो डू यू नो है उसको भी हमने चर्चा किया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।